बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ बेसिकली द anterior triangle of the neck. Last time we have studied the side of the neck. The boundaries of the side of the neck we discussed earlier was the chin, and from the chin is the base of the mandible, and the base of the mandible to the auricle, mastoid process, and then the trapezius, and then there was a clavicle and the midline. These are the boundaries which are forming the side of the neck. If you can see that this is the muscle that is the trapezius, all right, and this is the mastoid. Mastoid के बाद base of the mandible है, base of the mandible बाद chin और anterior midline. ये जो थी हमारी सारी की सारी थी, this is basically the side of the neck. अगर हम साइड ऑफ द नेक में देखें तो दिस साइड ऑफ द नेक हैज़ बीन डिवाइडेड बाय द sternocleidomastoid into the two parts. One is anterior to the sternocleidomastoid and another one is posterior to the sternocleidomastoid. So more or less two roughly triangles are formed. One is anterior to the sternocleidomastoid, this is known as the anterior triangle, and another one is posterior to the sternocleidomastoid, that is the posterior triangle of the neck. So if you see in this diagram, you can see again this is the base of the mandible, and this is the sternocleidomastoid, and this is the midline. This triangulated the area that is present on the side of the neck is basically the anterior triangle of the neck. In the anterior triangle of the neck, we are going to see the skin, superficial fascia, anterior jugular vein, lymph node, hyoid bone, sternocleidomastoid, and then we are going to study the details of the anterior triangle, its subdivision, muscles which are included in the anterior triangle of the neck. In the next presentation, we are going to see these topics. These are not included in this presentation, but in the next one. In this presentation, we are going to see the above mentioning topics. What is the skin? As we have discussed earlier, that the skin on the side of the neck is basically continuous with the skin that is present all around the body. It is being supplied by the cutaneous nerve of the C2 and C3, and the nerves we discussed was the preauriculars, the occipital, the greater auricular, supraclavicular, and the other ones which are we have already discussed. Now the main important landmark that is present on the side of the neck is the hyoid bone. If you can see the hyoid bone, you can see that hyoid bone where it is situated अगर यहाँ से आपको गौर से देखो तो hyoid bone जो है वो that is suspended by means of the muscles. अगर इसकी देखा जाए तो ये किसी के साथ अटैच नहीं है, बल्कि मसल्स की वजह से आपकी नेक की फ्रंट पे सस्पेंडेड है. सस्पेंडेड का है, लेवल का है, ये C3 वर्टिब्रा के सामने सस्पेंडेड है. और अगर इसको गौर से देखा जाए, इट हैज़ डिफरेंट पार्ट. दिस इज़ द बॉडी ऑफ द hyoid bone, दिस इज़ द लेसर कॉर्नू. ये जो आपको छोटे से हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर द लेसर कॉर्नू. और उसके बाद जो है दीज आर द ग्रेटर कॉर्नू, जो पीछे की तरफ आपकी नेक को यूं करके सराउंड करते हैं. यूं अगर नेक के स्ट्रक्चर्स यूं जा रहे हैं तो उसके गेट सामने की तरफ एंटीरियरली hyoid bone की बॉडी पड़ी हुई है, और पीछे की तरफ जो जा रही है दीज आर द ग्रेटर कॉर्नू ऑफ द hyoid bone, और इट इज़ सस्पेंडेड एट द लेवल ऑफ द C3 वर्टिब्रा. और ये डेवलप कहाँ से करती है? ये डेवलप करती है ये जो है फर्स्ट जो है सेकंड एंड द थर्ड ब्रेंकियल आर्च से डेवलप करती है एम्ब्लॉजिकली. इट इज़ सिचुएटेड मिड लाइन में नेक बिटवीन द चिन एंड द थायराइड कार्टिलेज. इट रेस्ट एट द लेवल ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा बिहाइंड एंड द बेस ऑफ द मैंडिबल. It is kept in the suspended position by the muscles and the ligaments. The bone consists of the central part and the two pair of the cornu, that is greater and the lesser. जो हम अभी देख चुके हैं कि ये C3 वर्टिब्रा के लेवल पे है, सस्पेंडेड बाय द मसल्स है, और इसका खुद का स्ट्रक्चर है कि सेंट्रल बॉडी है. बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है. ऑन द ईदर साइड दे आर नोन एज द लेसर कॉर्नू. और उसके बाद जो लैटरली डाइवर्टेड है, वो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स पीछे की तरफ जाते हैं, दे आर द ग्रेटर कॉर्नू ऑफ द hyoid bone. और ये से खुद जो डेवलप करती है सेकेंड एंड थर्ड ब्रेंकियल आर्च से डेवलप करती है. और वो जो है अगर देखो तो चेन के नीचे और यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज होता है, उसके दरमियान ये सस्पेंडेड है. नाउ what is the importance and the origin and insertion of the sternocleidomastoid? The most important landmark in the side of the neck is the presence of the sternocleidomastoid. As you can see that this part can be divided into the three portions. That is the sternal, cleido means through the clavicle, and mastoid. These two parts are going to
give rise to the muscle. So these are giving origin to the muscle, and here it is going to insert the muscle. The part you can see the origin, the sternal head is going to rise from the manubrium sterni, and the clavicular head is going to rise from the clavicle. It is going to insert onto the mastoid process and lateral half of the superior knuckle line. If you can see that these are the two heads of the sternocleidomastoid. One is arising from the midline, this is the sternal head. Another is rising from the clavicle, going upward and outward, and going to insert into the mastoid process and the lateral half of the superior knuckle line. So this is a very important landmark. We have discussed earlier that from the chin and the base of the mandible, this is going to form the boundary of the posterior boundary of the anterior angle of the neck, whereas similarly if this is forming the anterior boundary of the posterior triangle of the neck. So this muscle is basically very much important regarding the forming the boundaries of the triangle. Then what anterior triangle is? The anterior triangle again is the midline situated between the midline of the neck and the sternocleidomastoid. Its boundaries are by the anterior median plane, and posteriorly by the sternocleidomastoid, and superiorly by the base of the mandible, as you have already seen. Anterior midline, sternocleidomastoid, and this is the base of the mandible. So these are the boundaries of the anterior triangle of the neck. Then how the roof of the anterior triangle of the neck, as we have seen in the side of the neck, that is below the skin we come across the superficial fascia. The superficial fascia of the skin has one specific the muscle that is being blended in the superficial fascia, and that is the platysma. The platysma is going to arise from the clavicle and going upward and towards the base of the mandible, and this can be felt in your neck by stretching of the neck. The other thing which we come across in this skin superficial fascia, in the midline, was the anterior jugular vein. Anterior jugular vein forming the anterior venous arch and going to insert into the external jugular vein. Then we have seen the superficial group of the lymph nodes and the vessels and the cutaneous nerve, which we have seen earlier in the deep cervical fascia's presentation. Again in this slide you are going to see the boundaries of the anterior triangle of the neck. But if you see that interior triangle of the neck, it has been divided by means of the two muscle into the further subdivisions. What are those muscle and what are those division? If in this diagram you can see one muscle is arising from the styloid process, and with the help of the facial pulley it is going to insert onto the base of the mandible near the chin. ये जो मसल है, दिस इज बेसिकली द डायगैस्ट्रिक मसल. ठीक है जी. और इसी तरह का एक मसल आप देख रहे हो कि हायर्ड बोन से ओरिजिन करता है, एंड दैट इज पासिंग अंडर द sternocleidomastoid posteriorly रन करा. दिस इज द omohyoid muscle. So by means of these two muscles, this is the digastric and this is the omohyoid muscle, this anterior triangle of the neck has been divided into four further triangles. If we can see that the further four triangles, in this diagram, if I can draw the structure, this is the digastric and this is the omohyoid. So by means of the presence of the digastric muscle and omohyoid, this area, anterior triangle ka area, has been divided into the four further subdivisions. This one will be the muscular, this is the carotid triangle, and this is the digastric, ये पीछे वाली, और हम फिर जो फोर्थ वन, दिस इज़ द सबमेंटल ट्राइंगल. हम वन बाय वन अब इसकी जाके हम जो है वो डिटेल्स करते हैं. सबमेंटल है, डायगैस्ट्रिक, कैरोटिड एंड द मस्कुलर ट्राइंगल. सबसे पहले जो है ट्राइंगल वी आर गोइंग टू सी इज द सबमेंटल ट्राइंगल. सबमेंटल ट्राइंगल द मीडियन ट्राइंगल, ये वन इन नंबर होती है और दैट इज़ प्रेजेंट मीडियन. जस्ट ये जो आपको पहले को है, दिस इज़ द चिन. ठीक है जी, चिन है और बेस ऑफ द मैंडिबल आपको नज़र आ रही है. ठीक है, उसके बाद जो ये जो मसल है, दिस इज़ द एंटीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक ऑन द ईदर साइड. नीचे जो है, दिस इज़ द हायर बोन एंड दिस इज़ द चिन. नाउ वी कैन सी द बाउंड्रीज, वी कैन डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द सबमेंटल ट्राइंगल. इट इज़ वन इन नंबर एंड that is just present in the median plane. नंबर वन बात होगी, ये एक ही नंबर की होती है और मिड लाइन में होती है, इसलिए इसकी बाउंड्रीज ऑन ईदर साइड एक ही मसल बना रहा है. दिस इज द एंटीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल. ठीक है जी, ऑन ईदर साइड लैटरल बाउंड्रीज आर फॉर्म बाय द एंटीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक. जो बेस है, दिस इज फॉर्म बाय द हायर बोन, और जो एपिक्स हैं, जो दो ट्राइंगल की बाउंड्रीज मिलती है, दैट इज बेसिकली द चिन.
ये होगी इसकी बाउंड्रीज। फिर आपने देखनी है रूफ कैसे बनती है, तो रूफ हमेशा कैसे बनेगी, स्किन एंड द सुपरफिशियल फेशिया एंड प्लेटेस्मा एंड द डीप सर्वाइकल फेशिया रूफ बना देगी। बेस में अगर आपको नज़र आ रहा हो कि यूँ रनिंग फाइबर नज़र आ रहे हैं, दीज आर द बेस दैट इज़ फॉर्म बाय द माइलोहाइड मसल। जो माइलोहाइड मसल है दैट इज़ लाइंग इन द फ्लोर ऑफ द दिस ट्राइंगल। और इसके पास सिर्फ दो कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट जो हैं दिस इज द सबमेंटल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड एंड द जो सबमेंटल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड एंड सबमेंटल वेसल्स। अब इस डायग्राम में अगर हम इसको दोबारा से रिपीट करें तो एंटीरियरली इट इज़ द प्यूबिक सिम्फिसिस मेंटाई। सिम्फिसिस मेंटाई वो चीज़ चेन को कहते हैं। बेस इज फॉर्म बाय द हायर्ड बोन, ऑन ईदर साइड जो है दिस इज द डायगैस्ट्रिक मसल। ठीक है जी, आपको सब मेंटल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड भी नज़र आ रहे हैं और सब मेंटल वेसल और सब मेंटल आर्टरी भी नज़र आ रही है, मतलब इसके दोनों कंटेंट सब मेंटल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड एंड द सब मेंटल वेसल्स। अगर फ्लोर पे देखा जाए तो आपको यूं ऑब्लिकली रनिंग फाइबर्स ऑफ द माइलोहाइड मसल नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब हम इसको अगर बाउंड्रीज को रिवाइज करें तो व्हाट आर द बाउंड्रीज एंड द कंटेंट्स ऑफ द दी सबमेंटल ट्राइंगल। तो हमारी बाउंड्रीज क्या होगी, लैटरली ऑन द ईदर साइड इट इज़ फॉर्म बाय द एंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक एंड द बेस इज़ फॉर्म बाय द चिन। ठीक है, सॉरी अब मेरी मार्किंग गलत हो गई है। दिस इज़ द एंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक। ठीक है जी, और नीचे बेस इज फॉर्म बाय द हायर्ड बोन और जो ऊपर इसकी एपेक्स है दैट इज फॉर्म बाय द चिन। इसके पास दो कंटेंट्स हैं, सुपरफिशियल सबमेंटल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड एंड सबमेंटल वेसल्स। ठीक हो गया, और इसकी रूफ बनाएगी स्किन सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटेस्मा एंड द डीप सर्वाइकल फेशिया, उसकी भी सिर्फ इन्वेस्टिंग लेयर। और फ्लोर में जो आपको एक मसल मिलेगा दैट इज बेसिकली द माइलोहाइड मसल। और ये मीडियन रेफी क्या चीज़ होती है, माइलोहाइड मसल दोनों तरफ का जो है एक कॉमन स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर पे या फाइब्रस कैलो के बीच में रिम कैलो के लिगामेंट होता है उसके जाके इंसर्ट होती है, दैट इज़ बेसिकली द मीडियन रेफे। यहाँ से हम फिर दोबारा माइलो सबमेंटल ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर उसने सबमेंटल ट्राइंगल को फिर दोबारा बता दिया, दिस इज़ द एंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक। ठीक है जी, जो है उसके बाद बाय जो है इस फॉर्म बाय हायर्ड बोन एंड दिस इज़ द चेन। और उसके बाद नीचे जो आपको फ्लोर में नज़र आ रहा है माइलोहाइड मसल है, स्किन सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया इन्वेस्टिंग लेयर, उनके साथ इसकी रूफ बन रही है। कंटेंट जो थे सब मेंटल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड थे। ठीक है जी, और सब मेंटल वेन्स एंड ब्लड वेसल्स थी। देन द मोर इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल इज़ द डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल। डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल में आप देखो तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। कैसे मिलेगी, डायगैस्ट्रिक है तो इट मीन्स इसकी बाउंड्री दोनों तरफ से जो है वो डायगैस्ट्रिक मसल बना रहा है। पोस्टीरियरली भी ये डायगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली है, एंटीरियरली इट इज़ फॉर्म बाय द एंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक। और जो इसका ये चीज़ बन रही है, ऊपर की बाउंड्री बन रही है, दिस इज़ फॉर्म बाय द बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द एंगल ऑफ द मैंडिबल। अगर यहाँ से देखो तो दिस इज द इंटीरियर बैली ऑफ द ट्राइंगल एंड सॉरी डायगैस्ट्रिक मसल एंड दिस इज द पोस्टीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक, और उसके बाद बेस ऑफ द मैंडिबल है। दिस ट्राइंगल इज नोन एज द डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ फ्रॉम द सबमेंटल ट्राइंगल तो ये इंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक एंड दिस वाज द इंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक। ये जो आपको ट्राइंगल हमने दिखाई थी पहले हमने डिस्कस की थी, दिस बेसिकली ट्राइंगल इज द सबमेंटल ट्राइंगल। लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं दिस इज द डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल में आपने देखा कि आपकी डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल में एंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक एंड द बेस ऑफ द मैंडिबल। दिस ट्राइंगल इज बेसिकली द डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल। ठीक है जी, ये वाली ऊपर वाली जो ये जो है इसको सबमेंडिबल ट्राइंगल भी कहते हैं बिकॉज दिस ट्राइंगल इज हैविंग सबमेंडिबुलर ग्लैंड इन इट, ऑन दैट रेफरेंस इज आल्सो नोन एज द सबमेंडिबुलर ट्राइंगल। Roof of the digastric triangle again second superficial fascia containing the platysma, वही cervical branches of the facial nerve, ascending branches of the transverse or the anterior cutaneous nerve of the neck and the deep fascia. Floor again the floor is formed by the mylohyoid muscle anteriorly and hyoglossal posteriorly। ये देखें, इसमें अगर हम देखें तो हम कैसे देख रहे हैं कि दिस इज द एंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक और ये पीछे की तरफ जा रहा है तो पोस्टीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक, और इसको फॉलो कर रहा है साथ स्टाइलोहायोइड मसल। ठीक है जी, कि पोस्टीरियर जो इसकी बाउंड्री है दैट इज़ फॉर्म बाय द डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहाइड, एंटीरियर वो जो फॉर्म करा है दैट इज़ द एंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आ जाएगा वही वाली बात, स्किन सुपरफिशियल फेशिया, उसकी प्लेटिज्मा और सारे कंटेंट्स आप बता दोगे, और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, ये सब कुछ क्या बनाएगा, रूफ। अगर इसकी फ्लोर में देखा जाए तो आपको वही माइलोहाइड ग्रुप मसल नज़र आ रहा है। ठीक है जी, माइलोहाइड मसल इसमें नज़र आ रहा है। इससे नेक्स्ट अगर हम डायग्राम देखें तो आपको ये भी माइलोहाइड उसके फ्लोर में नज़र आ रहा है।
रहा है, ठीक है जी। इससे आगे चलें तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस ये वाला जो है दिस इज़ द माइलोहाइड मसल, ठीक है जी, फ्लोर में। उसके पीछे हायोग्लॉसल पड़ा हुआ है और उससे पीछे जो पड़ा हुआ है दिस इज़ द मीडियल कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स, जो कि इसके फ्लोर ऑफ द डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल है। दिस इज़ द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक, दिस इज़ द एंटीरियर एंड दिस इज़ द बेस ऑफ द मैंडिबल। ये जो ट्राइंगुलेटेड एरिया था दिस इज़ द डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल थी, उसके फ्लोर में आपको माइलोहाइड मिल गया, आपको मिल गया हायोग्लॉसल, और ये मिल गया मिडिल कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स। तो हम इसको स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो ये हम क्या देखते हैं, हम अगर इससे देखें दिस इज़ द बेस ऑफ द मैंडिबल इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक, तो हमें पीछे की तरफ मिल रहा है माइलोहाइड भी, और उससे लेयर में, यानी अगर ऊपर माइलोहाइड है उसको ओवरलैप कर रहा है हायोग्लॉसल, और पीछे उसके बड़ा हुआ है मिडल कंस्ट्रक्टर। तो इट मीन्स इनमें थोड़ी थोड़ी लेयरिंग है कि एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। तो देयर मस्ट बी सम स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट सुपरफिशियल टू द माइलोहाइड, और देन डीप टू द माइलोहाइड बट सुपरफिशियल टू द हायर, और सम डीप टू द हायर। तो हम अगर इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन स्ट्रक्चर्स की देखें तो हम उसके लिहाज से देखें, डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल में एंटीरियर पार्ट है और उसमें सुपरफिशियल टू माइलोहाइड आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे सुपरफिशियल तो पहला स्ट्रक्चर आपको जो मिलेगा दैट इज़ द सबमैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, देन सबमेंटल आर्टरी, माइलोहाइड नर्व्स एंड वेसल। और जब आप माइलोहाइड को की डिसेक्शन कर दोगे, उसको उतार दोगे, then you are going to see the structure which are deep to the mylohyoid but superficial to the hyoglossal। और उस वक्त आपको क्या मिलेगा, सबमैंडिबल स्लाइवरी ग्लैंड का डीप पोर्शन, ठीक है जी, टेंडन ऑफ द डाइगेस्टिंग एंड स्टाइलोइड, एंड द नर्व दैट इज द हाइपोग्लॉसल नर्व, यानी 12th नर्व। उसके पोस्टीरियर पार्ट पे जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, इसी को अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहें तो ये देखो कि मैं बात कर रही हूँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड की और आपके हायोग्लॉसल के भी जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। हमने पहले बात की कि सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे उसमें क्या क्या बात की थी, सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड एंड सम मेंटल वेसल्स थी एंड माइलोहाइड नर्व एंड वेसल्स। जो स्ट्रक्चर डीप टू द सुपरफिशियल टू द हायोग्लॉसल थे वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड का डीपर पोर्शन था, डायगेस्ट्रिक, स्टाइलोहाइड एंड हायोग्लॉसल हाइपोग्लॉसल नर्व। ये जो है इसके सुपरफिशियल तो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन में अब आप इसमें आ जाओ तो उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा पेरोटिड ग्लैंड, और पेरोटिड ग्लैंड में जो गुजरती हुई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और उससे डीप पड़े होंगे स्टाइलोग्लॉसल जो है लिगामेंट। यहाँ से देखो तो ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है कि माइलोहाइड जो है अभी अपनी पोजीशन में है। द स्ट्रक्चर विच आर गोइंग टू सुपीरियर टू द माइलोहाइड इज़ अ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमेंटेबल आर्टरी एंड नर्व एंड सब जो है मेंटल वेसल्स, ये आपको नज़र आ रही है इन द सुपरफिशियल। अब सुपरफिशियल की वजह से अब आप जब आप इसको काट दोगे तो सब ये जो माइलोहाइड मसल का फ्लोर है इसको आगे नीचे ले जाओगे तो आपको डीपर स्ट्रक्चर हाइपोग्लॉसल के ऊपर पड़े हुए नज़र आएंगे। दे इंक्लूड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है हाइपोग्लॉसल मसल, और हाइपोग्लॉसल के ऊपर आपको नज़र आएगी डिफरेंट जो हमने क्या था सबमैंडिबुलर का डीप पोर्शन और हाइपोग्लॉसल नर्व नज़र आ रही है आपको। ये आपको स्ट्रक्चर फिर दोबारा सब मैंडिबुलर ट्रायंगल इज अगेन द डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल, उसी के कंटेंट्स पे दोबारा दिखाए हुए सुपरफिशियल और डीप करके एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट के। द थर्ड ट्रायंगल यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल को अगर हम देखें, कैरोटिड ट्रायंगल की बाउंड्रीज अगर देखें तो यहाँ पर जो इंटीरियर बाउंड्री है दिस इज़ द ओमोहाइड मसल, दिस इज़ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ठीक है जी, ये ओमोहाइड से बनेगा, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड से बनेगा, एंड देन द डायगेस्ट्रिक मसल, ठीक है जी। ये देखिए जी, दोबारा से मैं अगर आपको दिखाऊं तो दिस इज द इंटीरियर बैली ऑफ द डायगेस्ट्रिक, ये ओमोहाइड मसल है उसकी सुपीरियर बैली, एंड दिस इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ये जो हम ट्रायंगल बाउंड कर रहे हैं दिस इज द कैरोटिड ट्रायंगल, और इसके फ्लोर में आपको देखो तो नज़र आ रहा है मिडल एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स। इसमें आपको पूरी की पूरी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर अगर आप देखो तो रूफ इसकी कौन सी बन गएगी, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया का वो सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिज्मा और उसकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग वेसल्स आप लिख दोगे और नर्व्स लिख दोगे। उसके बाद देखोगे तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक हो गया। ये सारे स्ट्रक्चर आ गया आपके रूफ में, और फ्लोर बन रहा होगा मिडल कंस्ट्रक्टर एंड द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स। कंटेंट्स क्या होंगे कैरोटिड ट्रायंगल्स के, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन, ये देखो ये वाला सारे कंटेंट्स हैं। दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाद दिस इज द एक्सटर्नल जगुलर एंड दिस इज द इंटरनल जगुलर वेन। और ये आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये वाली जो नर्व है दिस इज बेसिकली द
दी वेगस नर्व की फिर बाकी ये को वेगस नर्व जो लूप राउंड करती है तो दैट इज़ गोइंग टू गिव ब्रांचेस, उसकी सारी ब्रांचेस एक्सटर्नल रेंजर और इंटरनल रेंजर नर्व सब कुछ इसमें जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। ये आपको सुपरफिशियल जो हमने नर्व्स की थी कि लेसर ऑक्सीपिटल है, ग्रेटर ऑरिकल, ये लेसर ऑक्सीपिटल है जो ऑरिकल के पीछे जाएगी। फिर उसके बाद ग्रेट ऑरिकुलर है जो पेरोटिड रीजन में जाती है। दिस इज़ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल जो आगे जा रही है, सामने की तरफ देगी। और दिस इज़ द सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ द नर्व जो कि स्किन में प्रेजेंट है, कटेनियस नर्व सप्लाई कर रही होती है प्लेटिज्मा और स्किन ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट को। कैरोटिड ट्रायंगल के ये दोबारा के सारा कुछ दिखाया हुआ है कि दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अंदर वाली एक्सटर्नल कैरोटिड है क्योंकि उसने फेस की तरफ जाना है, बाहर वाली जो है इंटरनल कैरोटिड है क्योंकि उसने ब्रेन के अंदर जाना है। फिर आपको नज़र आ रही है इंटरनल जगुलर वेन, ये वाली इंटरनल जगुलर वेन के साथ आपको वेगस नर्व और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। और दिस इज द सर्वाइकैलिस। ठीक है जी। फोर्थ एंड द लास्ट ट्रायंगल इज अ मस्कुलर ट्रायंगल। मस्कुलर ट्रायंगल आप देखो तो उसकी इंटीरियर बॉडी है वो इंटीरियर मिड लाइन की लाइन इमेजिनरी लाइन से बनती है जो हायर बोन से लेके स्टर्नम तक है। उसकी जो फिर एक बाउंड्री बनी है दैट इज फॉर्म बाय द सुपीरियर बैली ऑफ द ओमोहाइड, और जो इंफीरियर बाउंड्री बन रही है दिस इज बेसिकली बाय मीन्स ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमेस्टर, यानी मेडलाइन इमेजिनरी लाइन है, ऊपर से हायर्ड बोन है, फिर उसके बाद ओमोहाइड एंड दिस इज द स्टर्नोक्लेडोमेस्टर। ये जो बाउंड्री आपको मिलेगी दिस इज बेसिकली द मस्कुलर ट्रायंगल। अब मस्कुलर ट्रायंगल है तो नाम से जाहिर है बाउंड्रीज भी सारी मसल्स बना रही और इमेजिनरी लाइन बना रही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ट्रायंगल के कॉन्टेंट्स भी सारे मसल्स हैं। अब मसल्स के जो है ट्रायंगल के मसल्स उसमें इंफ्रा हायर ग्रुप ऑफ द मसल्स, इंफ्रा मीन्स लोअर, हायर्ड मीन्स हायर्ड बोन से, यानी वो तमाम मसल जो हायर्ड बोन से भी अटैच्ड हैं लेकिन हायर बोन से नीचे हैं, दे आर नोन एज इंफ्रा हायर्ड ग्रुप ऑफ द मसल। और उसमें आपके आ जाएंगे स्टर्नो हायर्ड, स्टर्नो थायराइड, स्टर्नो thyrohyoid and omohyoid. These are known as the strap muscle of the neck or the ribbon-like muscle. They are arranged in the two layers, superficial and the deep. So these are supplied by the ventral rami of first, second and the third cervical nerve. हाँ जी, ये देखें ये हायर्ड बोन है, हायर्ड और चिन के बीच में दे आर द ग्रुप ऑफ द मसल, यहाँ पे जितने प्रेजेंट हैं दे आर द सुप्रा हायर्ड। और जो हायर्ड बोन से नीचे ये जो आपको स्ट्रैप लाइक मसल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर द इंफ्रा हायर्ड मसल्स। जो हमने ट्रायंगल पढ़ी क्योंकि वो हायर्ड बोन से नीचे थी तो हमारे पास जो कॉन्टेंट आ रहे थे दे आर द इंफ्रा हायर्ड ग्रुप ऑफ द मसल। लेकिन जो बोन से ऊपर वाले मसल्स थे जो भी हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से भी हमने देखे अगर आपको याद हो, तो सुप्रा हायर्ड ग्रुप ऑफ मसल में हमने देखा था डायगैस्ट्रिक जिसकी इंटीरियर पोस्टीरियर बैलीज थी, ठीक है, इंटीरियर बैली थी, ठीक है, और पोस्टीरियर बैली थी। जो इंटीरियर बैली थी उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, मैंडिबल से, ठीक है जी। और जो पोस्टीरियर बैली थी वो कहाँ से हो रही है, मेस्टर्ड प्रोसेस से, मेस्टर्ड नॉच ऑफ द टेम्पोरल बोन। बोनो हेड मीट करते हैं एट इंटरमीडिएट टेंडन एंड दे आर हेल्ड बाय द फाइब्रस पुली टू द हायर्ड बोन। इनर्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एंटीरियर बैली जो है वो माइलोहाइड मसल के साथ शेयर करती है और पोस्टीरियर बैली यानी ये फिफ्थ नर्व के साथ है, और ये जो पोस्टीरियर बैली है दैट मीन्स ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व। इसका फंक्शन जो है दिस इज डिप्रेसिंग द मैंडिबल व्हेन द माउथ इज ओपन वाइडली। यहाँ से देखो, यहाँ से दिस इज़ द पोस्टीरियर बैली, ये जो है मेस्टर्ड बोन के साथ अटैच है। दिस इज़ द एंटीरियर बैली जो कि चिन के साथ अटैच है। सो दिस इज़ बाय दीज आर बोथ द ओरिजिन, ये भी और ये जो मेस्टर्ड प्रोसेस के साथ था ये भी, और इनकी ओरिजिन के साथ साथ दोनों के साथ अगर देखो तो फाइब्रस पुली के साथ ये हायर्ड बोन के ऊपर इंसर्टेड है। तो दिस इज़ अगेन द ओरिजिन, और पीछे मेस्टर्ड से भी ओरिजिन है, पोस्टीरियर बैली का मेस्टर्ड से ओरिजिन है, एंटीरियर बैली का चिन से ओरिजिन है। दे बोथ आर गोइंग टू बी, कह लो कि ऐसे करके ओरिजिन कर रहा है, देखो मैं फर्स्ट ऑफ द मैंडिबल से और मेस्टर्ड से ओरिजिन है, और हायर्ड बोन के साथ पुली के साथ जो है वो इंसर्शन है, और इसकी इंटीरियर बैली की नर्व सप्लाई फिफ्थ नर्व के साथ है, पोस्टीरियर बैली जो है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व के साथ है, ठीक है। और यहाँ से देखो तो फंक्शन क्या करेगा, डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल के। उसके बाद जो हमने सेकंड मसल पढ़ा था दैट वाज द माइलोहाइड। माइलोहाइड लाइन ऑफ द मैंडिबल से लेके हायर्ड बोन तक जो आपको मसल मिलेगा दिस इज़ बेसिकली द माइलोहाइड। माइलोहाइड हमने मैंडिबल पे माइलोहाइड लाइन पढ़ी थी, अंदर की तरफ है मीडियल सरफेस पे मैंडिबल पे बेस, इस पे बेस ऑफ द मैंडिबल पे, वहाँ से जो राइज कर रहा है और हायर्ड बोन तक जा रहा है तो माइलोहाइड मसल, ठीक है जी।
जीनियोहाइड क्या होगा, जीनियल ट्यूबरकल से लेके, ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है जीनियल ट्यूबरकल, आपको याद हो कि ये सिम्फिसिस मेंटाई के पीछे छोटे छोटे ट्यूबरकल से देवर द जीनियल ट्यूबरकल, वहाँ से राइज करेगा और हायर्ड बोन के साथ इंसर्ट होगा एज द नेम शोज, जीनियल ट्यूबरकल टू द हायर्ड बोन। नाम से बिल्कुल याद करते जाना है कि जीनियल ट्यूबरकल से हायर्ड बोन तक जो जाएगा दैट इज़ द जीनियोहाइड, और इसकी जो है जीनियल ट्यूबरकल ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल भी लिख सकते हैं, इंसर्शन ऑन द हायर्ड बोन हो जाएगी, रेमस ऑफ द C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व, ये इसको इंसर्ट नर्व सप्लाई है, ये क्या करेगा, एलिवेट द हायर्ड बोन, ठीक है जी। व्हेन द मैंडिबल इज फिक्स्ड ये डिप्रेस भी कर सकता है, ठीक हो गया। थर्ड जो सुप्रा हायर्ड ग्रुप ऑफ द मसल है दैट इज द स्टाइलोहायड। स्टाइलोहायड देखो फिर दो पार्ट कर लो, एक स्टाइलॉइड और एक हायोइड, यानी स्टाइलॉइड प्रोसेस से ओरिजिन करेगा, हायोइड बोन से इंसर्ट करेगा, दैट इज द स्टाइलोहायोइड। ये देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस से हायोइड बोन तक, फेशियल नर्व इसकी नर्व है, पुल द हायोइड बोन अपवर्ड, ठीक है जी। माइलोहायोइड, अभी जैसे मैंने बताया कि माइलोहायोइड लाइन ऑफ द मैंडिबल और हायोइड बोन पे इंसर्ट करेगा, नर्व टू द मैंडिबल है, एलिवेट द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है जी। ये सुप्रा हायर्ड ग्रुप ऑफ द मसल्स नज़र आ रहे हैं, अगर ये देखो तो दिस इज़ द, ये हायर्ड बोन है, सुप्रा मीन्स ऊपर, तो ऊपर से कौन कौन से मसल नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 इज़ द जीनियो हायर्ड, जीनियल ट्यूबरकल से लेके हायर्ड बोन तक। सेकेंड वन इज़ द माइलोहाइड, माइलोहाइड लाइन से यहाँ होती माइलोहाइड लाइन हायर्ड बोन तक, तो माइलो हायर्ड ये हो गया। डायगैस्ट्रिक, ये भी ओरिजिन है बेस ऑफ द मैंडिबल, और मेस्टॉइड भी ओरिजिन है, बाय मीन्स ऑफ द फेशियल पुरी इंसर्टेड ऑनटू द हायर्ड बोन। स्टाइलोहायोइड, जो ग्रीन नज़र आ रहा है यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है और बोन के साथ इंसर्टेड है, स्टाइलोहायोइड ग्रुप ऑफ द मसल। सो हमारे पास जो चार ये मसल आ गए, ये जो चार मसल हैं दीज आर द सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ द मसल्स। नाउ हमारे पास जो आ गया नेक्स्ट स्टेप इज द स्टेप दैट इज द इंफ्राहायर्ड। इंफ्राहायर्ड मसल्स को अगर हम देखें तो दीज आर द इंफ्राहायर्ड ग्रुप ऑफ द मसल, ये जो आपको इस मिड लाइन में नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे, ये जो मिड लाइन के मसल्स हैं ये स्ट्रैप लाइक मसल्स हैं। स्ट्रैप लाइक मसल्स को आप क्या कहते हो, जो स्ट्रैप लाइक मसल्स होते हैं, रिबन लाइक मसल, दे आर बेसिकली 4 इन नंबर। 4 इन नंबर हम अगर देखें तो नंबर 1 जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द स्टर्नोहायोइड, यानी स्टर्नम से लेके हायोइड बोन तक लंबा मसल, ठीक हो गया। सेकंड बोन जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द ओमोहाइड। ओमोहाइड की भी हम दो बेली करते थे, एंटीरियर बेली एंड द पोस्टीरियर बेली, और वो फेशियल पुली के साथ फिर ये क्लेविकल बोन के साथ अटैच्ड है, ठीक है जी। सुपीरियर बेली एंड द इन्फीरियर बेली और हायर्ड बोन के साथ, और ये कैसे है, स्टर्नम से लेके हायर्ड बोन, तो उस रेफरेंस से स्टर्नोहायर्ड। अब आपने स्टर्नोहायर्ड को काट दिया, उसके नीचे आपको यू विल कम अक्रॉस द टू अगेन मस्टर। नंबर 1 इज़ द स्टर्नोथायरॉयड, देखो स्टर्नम से लेके थायरॉयड तक, और सेकंड पार्ट इज़ द स्टर्नोहायोइड कि थायरोहायोइड, थायरॉयड कार्टिलेज से हायोइड बोन तक। दोबारा से अगर हम देखें हमने क्या किया, हमने चार मसल्स को कहना है, वो कहते हैं चार मसल्स हैं आपके स्ट्रैप मसल एंड दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द टू लेयर्स। टू लेयर्स कैसे हैं, नंबर 1 लेयर में आपके पास जो आ रहा है, नंबर 1 लेयर में ये है और ये ओमोहाइड, और ये है स्टर्नोहायोइड, ओमोहाइड एंड स्टर्नोहायोइड। फिर आपने क्या किया, इस स्टर्नोहायोइड को डायसेक्ट आउट कर दिया, तो यू विल कम अक्रॉस टू अगेन मसल स्टर्नोथायरॉयड एंड थायरोहायोइड, यानी स्टर्नम से लेके हायोइड तक, फिर ब्रेकअप हो गया और थायरो से लेके हायोइड तक, ये चार मसल्स आपके पास आ गए। कौन कौन से, पहले पिया स्टर्नम, आपने सिर्फ इतना सा बताना है कि ये मेनूब्रियम स्टर्नाइड से राइज करेगा एंड गोइंग टू इंसर्ट ऑन द हायर्ड बोन। आंसर सर्वाइकैलिस से ये है, इसकी नर्व सप्लाई है और डिप्रेस करता है हायर्ड बोन को, नीचे की तरफ खींचता है। फिर आपने बताया स्टर्नोथायरॉयड, फिर वही बारी बात आती है कि स्टर्नम से लेके थायरॉयड कार्टिलेज तक, ये भी आपका आंसर सर्वाइकैलिस से इनर्वेटेड है और ड्रॉज लेरिंग्स या थायरॉयड कार्टिलेज डाउनवर्ड, क्योंकि ये थायरॉयड कार्टिलेज के साथ है, इसलिए लेरिंग्स या थायरॉयड के साथ आप इसको लिंक कर दोगे। फिर थायरोहायोइड, थायरॉयड कार्टिलेज से हायोइड बोन तक, ये किससे है, हाइपोग्लॉसल नर्व पे, और डिप्रेस करता है हायर्ड बोन को। ये सारे के सारे हायर्ड बोन को डिप्रेस करें, क्यों, क्योंकि ये देखो ये हायर्ड बोन के साथ हैं, तो ये सब नीचे की तरफ खींचेंगे सब, ठीक है जी।
ओमोहाइड का क्या करते हैं, ओमोहाइड का वो कहते हैं कि इट हैज़ गॉट सुपीरियर एंड द इन्फीरियर वैली, सुपीरियर वैली स्कैपुला से राइज करती है, ठीक है जी, और जो है उसके बाद जो है सुप्रास्कैपुलर नॉच से, और अटैचमेंट का है हायर बोन इट इज़ अटैच टू द हायर बोन, यानी अगर मैं इसमें से आपको भी दिखाऊं, अराइज यहाँ से कर रहा है सुप्रास्कैपुलर नॉच ऑफ द क्लेविकल स्कैपुला से, अपवर्ड आता है, इन्फीरियर बेली इसकी अपवर्ड आती है, क्लेविकल पे इसको पुल किया जाता है और जाके इंसर्ट हो जाती है ऑन टू द हायर बोन। ये देखो इसमें दोबारा से क्लियर इतने नहीं है, ये देखो ये स्कैपुला से आ रहा है, स्कैपुला से आके फेशियल पुली के साथ क्लेविकल पे है इन्फीरियर बेली, और सुपीरियर बेली जाके हायर बोन पे। फिर देखो स्टर्नो थायर्ड, स्टर्नम से लेके हायर तक, अब आपने इसको काट दिया तो यू कम अक्रॉस स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टायरोहायर्ड, ठीक है जी। दीज आर द इंफ्रा हायर ग्रुप ऑफ द मसल, डाइगैस्ट्रिक, ओमोहाइड, जीनियोग्लॉसल, और जो फोर्थ वन था वो क्या था, माइलोहाइड। दीज आर द सुप्राहाइड ग्रुप ऑफ द मसल, ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस प्रेजेंटेशन, और अब आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ बेसिकली